اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اولاد والدین کے لیے مستقبل کا قیمتی اثاثہ ہے۔ اولاد والدین کے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اولاد کی تربیت والدین کی اولین ذمہ داری اور اہم ترین فریضہ ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے۔ تربیت اولاد سے غفلت ندامت و پشیمانی کا باعث ہے۔ دنیا بھر میں بچوں اور نوجوانوں میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح، منشیات اور نشہ آور ادویات کے استعمال کا بڑھتا ہوا رجحان، بچوں میں عدم برداشت، مایوسی، خودکشی، نفسیاتی مسائل، پرتشدد واقعات میں اضافہ، والدین اور اولاد کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ، ماہرین سماجیات و نفسیات اور والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ جرائم کی دنیا میں نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے قدم قصوروار کون؟ تعلیمی اداروں میں منشیات کی کھلم کھلا خرید و فروخت مجرم کون؟ نشے میں دھت ٹین ایجرز کس کی غفلت کا نتیجہ ہے؟ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال روک تھام کون کرے گا؟ ایڈونچر کے نام پر خطروں سے کھیلنا کس کی ڈھیل ہے؟ اولاد کی تربیت کن خطوط پہ کی جائے؟ اولاد کی تربیت کے اسلامی اصول و ضوابط کیا ہیں؟ اولاد کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیمات و ہدایات کیا ہیں؟ جانیے آگہی کے اس سفر میں۔ قرآن مجید میں اولاد کی تربیت کے بارے میں بارہا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اولاد کی تربیت پہ بڑا فوکس کیا اور کہا کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور ایک جگہ اولاد کو فتنہ بھی کہا کہ انسان اس کی محبت میں کہیں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ حرص و ہوس میں مبتلا ہو جائے اور اچھائی اور برائی میں تمیز چھوڑ دے، بلکہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اولاد اس کے لیے ایصال ثواب کا سبب بنے اور اس کے لیے بخشش کا سامان بنے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے اولاد کی تعلیم و تربیت ان کا بنیادی حق ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی آخرت میں پکڑ اور گرفت کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر کے فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر جس طرح خود کو کرنی ہے، اسی طرح والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بچپن سے ایسی تربیت کریں کہ ان میں دینی شعور پختہ ہو اور بڑے ہو کر وہ زندگی کے جس میدان میں قدم رکھیں، ایمان و عمل صالح سے
उनका रिश्ता ना सिर्फ कायम बल्कि मजबूत रहे। तरबियत कहते हैं किसी चीज को आहिस्ता आहिस्ता दर्जे कमाल तक पहुंचाना। तरबियत के मफहूम पर गौर किया जाए तो अंदाजा होता है कि यह एक बामकसद अमल है। तरबियत के अमल में इंसान की फितरी सलाहियतों की हिफाजत की जाती है। तरबियत नाम है फर्द की सलाहियतों को परवान चढ़ाने का। बच्चे की सलाहियतों और खूबियों को निखारने का अमल तरबियत कहलाता है। औलाद की ज़ाहिरी और बातनी दोनों किस्म की तरबियत वालिदैन के जिम्मे लाजिम व जरूरी है, और वालिदैन का अव्वलीन फरीजा है माँ बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए बेहद रहमत और शफकत का फितरी जज्बा। यही फितरी जज्बा और एहसास है जो वालिदैन को बच्चों की निगहदाश्त, देखभाल, तालीम और तरबियत और उनकी किफालत पर उन्हें उभारता है। यह एहसास वालिदैन को इस अहम फरीजे की अंजामदही से गाफिल होने नहीं देता। इस्लाम ने औलाद की तरबियत पर बहुत जोर दिया है। दीन इस्लाम ने तरबियत का असलूब ही नहीं, तरबियत के उसूल और खतूत भी बयान किए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जनाब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करना, माँ बाप के साथ अदब से पेश आना, अपने वालिदैन की हर बात पर इताअत करना, जुल्म या बुराई ख्वाह कितने ही पर्दों में छुपे हों या कितने कम क्यों ना हो, अल्लाह उनको देखता और जानता है, और वो रोज क़यामत उनको निकाल कर नामाल में सामने रख देगा। नमाज कायम करना और अच्छे कामों की नसीहत करते रहना। कोई मुसीबत आ जाए तो आहुजारी करने के बजाय उस पर सब्र करना, जमीन पर अकड़ कर न चलना, क्योंकि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता। अपनी रफ्तार में मियाना रवि रखो और चीख चिल्लाकर ना बुला करो। अपनी आवाज को मध्यम रखो। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी औलाद को दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने और अल्लाह वाहिद व यकता की इबादत व बंदगी की ताकीद फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, और इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को इसी दीन की वसीयत की कि ऐ मेरे बेटों, बेशक अल्लाह ने यह दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है, तो तुम हरगिज़ न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ऐ यहूदियों, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब के विसाल का वक्त आया, जब उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, ऐ बेटों, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा, हम आपके माबूद और आपके आबा व अजदाद इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो एक माबूद है और हम उसके फर्माबरदार हैं। बच्चों की तरबियत एक अहम जिम्मेदारी है। छोटे बच्चों का जहन साफ और शफाफ और खाली होता है। इसमें जो चीज भी नक्श कर दी जाए वो पत्थर पर लकीर की तरह नक्श हो जाती है। कुरान और हदीस में इस हकीकत को खोल कर बयान किया गया है। हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। इसमें तहारत व पाकीज़गी, बुराइयों से दूरी और ईमान की रोशनी होती है। बच्चे को घर में अच्छी तरबियत और माशरे में अच्छी सोबत मैसर आ जाए तो वो ईमान और इखलाक में कामिल इंसान बन जाता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक बचपन में औलाद की तरबियत जवानी के मुकाबले बहुत आसान है। जिस तरह जमीन से उगने वाले नर्म और नाजुक पौधों को सहूलत के साथ कहीं भी मोड़ा जा सकता है, इसी तरह बच्चों के ख्यालात, अफकार और तर्ज जिंदगी को जिस रुख पर चाहें बासानी लाया जा सकता है। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी अक्ल पुख्ता हो जाए तो उनकी आदाद व अतवार में तब्दीली बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए इब्तिदाई उम्र में बच्चों की निगरानी और उनकी सही तरबियत वालिदैन और सरपरस्तों की अहम जिम्मेदारी है। बच्चों को क्या सिखाया जाए, किन बातों की तालीम दी जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से भी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत और उनके अहले बैत से मोहब्बत और कुरान मजीद की तिलावत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या रहनुमाई फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसका किस दर्जा ख्याल रखते थे, इसकी बेशुमार मिसालें कुतुब हदीस और सीरत में देखी जा सकती हैं। हजरत उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, मैं जब छोटा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनावुल करते हुए मेरा हाथ बर्तन में इधर उधर चला जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए लड़के, अल्लाह का नाम लो, दाएं हाथ से खाओ और अपने करीब से खाओ। रूसी माहिर तालीम विगोट्सी के नजदीक बच्चों की तरबियत में सबसे बड़ा किरदार बच्चे के बड़ों का होता है, जिसमें बच्चे के वालिदैन, बड़े बहन भाई, दोस्त, क्लास फेलोज और टीचर्स शामिल हैं। बच्चे इन तमाम बड़ों से जो सीखते हैं वो उनकी ज़हनी नशोनुमा में बहुत असरअंदाज होता है। बाज़ औक़ात बड़े या वालिदैन बच्चों को बुलाने के लिए यूं ही कह देते हैं कि आओ तुम्हें चॉकलेट देंगे, या बच्चों की पसंदीदा चीज देने का कह देते हैं और हकीकत में देने का इरादा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तर्ज अमल से भी मना फरमाया है और इसे झूठ करार दिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ फरमा थे। मेरी वालिदा ने मुझे पुकारा, आओ एक चीज दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा से दरियाफ्त फरमाया, तुमने इसे क्या देना चाहा? वालिदा ने अर्ज किया कि खजूर देना चाहती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदा से इरशाद फरमाया, सुनो, अगर तुम इसे कुछ ना देती तो तुम्हारे हक में यानी नामा अमाल में ये एक झूठ लिखा जाता। बच्चों की तरबियत में घर और आसपास का माहौल इंतहाई अहमियत का हामिल है। अच्छा माहौल बच्चों की शख्सियत पर अच्छा असर डालता है, जबकि बुरा माहौल बच्चों की सलाहियतों और तरबियत पर मनफी असरात मुरत्तब करते हैं। बच्चों को अदब सिखाना वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। एक वालिद का अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा अदब सिखाना है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई बाप अपनी औलाद को इससे बेहतर अतिया नहीं दे सकता कि उसको अच्छे आदाब सिखा दे। अफसोस आज वालिदैन के पास औलाद के लिए टाइम नहीं है। वालिदैन अपना क्वालिटी टाइम बच्चों पर खर्च नहीं करते। अक्सर वालिदैन बच्चों के फ्रेंड सर्कल के बारे में नहीं जानते। बच्चा सोशल मीडिया पर क्या देख रहा है, वालिदैन इससे कतई लाइल्म होते हैं। बच्चों की तरबियत और उन्हें अदब सिखाना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, अपनी औलाद को अदब सिखाओ, क़यामत वाले दिन तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इसे क्या अदब सिखलाया और किस इल्म की तालीम दी। बच्चों की तरबियत के लिए उन्हें अपना क्वालिटी टाइम दें। वालिदैन बच्चों के पास बैठें, उनसे बातें करें, उनकी मसरूफियात के बारे में पूछें, अच्छी आदतों पर उनकी हौसला अफजाई करें, बुरी आदतों के नुकसानात से खबरदार करें, बच्चों को सेहत और सफाई की अहमियत बताएं। वालिदैन औलाद को वक्त और तवज्जो देंगे तो वालिदैन को भी इसका समर मिलेगा और बच्चों की जिंदगी भी कामयाब, वरना खुद भी दुखी होंगे और औलाद भी परेशान। औलाद की तरबियत के हवाले से ये बात भी पेश नजर रहनी चाहिए कि वालिदैन असरी और दीनी दोनों एतबार से बच्चों की तरबियत करें। असरी अलूम के साथ साथ बच्चों को दीनी अलूम से भी आगाह करें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वालिद पर औलाद के हुकूक में यह भी है कि उन्हें लिखना, पढ़ना और तीर अंदाजी सिखाएं और उन्हें हलाल खुराक मुहैया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटों की तरबियत के साथ साथ बेटियों की तरबियत के हवाले से भी खास ताकीद फरमाई है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी लड़की हो और वो उसे जिंदा दरगोर न करे और उसकी तौहीन न करे और दीगर औलाद यानी बेटों को उस पर तरजीह न दे, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बच्चों के मुस्तकबिल और पेशा वराना तालीम के लिए बच्चों के रुझान और दिलचस्पी को मलहूज रखना जरूरी है। वालिदैन को चाहिए बच्चों की पेशा वराना तालीम के मामले में अपनी ख्वाहिश और मर्जी को
बच्चों पर मुसल्लत ना करें। जब वालिदैन बच्चों के रुझान और दिलचस्पी को मद्देनजर नहीं रखते, इससे उनकी सलाहियतें जाया हो जाती हैं। और यही नहीं, अक्सर वालिदैन का ये रवैया बच्चों को बागी बना देता है। एक तो यह है कि इंसान की सोहबत, घर का माहौल, फिर उसके साथ साथ माशरती और समाजी इक्तिसादी जो पहलू हैं वो भी हमारे सामने आते हैं कि बेरोज़गारी का बहुत बढ़ जाना, गुर्बत का होना, फिर मीडिया में चीज़ों को ग्लैमराइज़ करना, मंशात के इस्तेमाल को बुरा ना समझना, जराइम में मुलविस होने को ताकत ख्याल करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो असरअंदाज होती हैं और लाशऊरी तौर पर जो है नौजवान नस्ल इस जानिब मुतवज्जह होती है और एक बार जब उसका शिकार हो जाए तो फिर उससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। औलाद की सही तरबियत ना होने की वजह से बच्चों में जराइम की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। चूंकि हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, इसीलिए जिन जराइम में नौजवान नस्ल ज्यादा शामिल नजर आ रही है वो साइबर क्राइम्स हैं। तहकीकाती इदारे के मुताबिक साइबर क्राइम में 80% तक इजाफा देखने में आया है और इसको सरअंजाम देने वाले लोग ज्यादातर तलबा या बेरोजगार डिग्री होल्डर्स हैं। साइबर क्राइम्स के अलावा नौजवानों की एक बड़ी तादाद मनशियात में मुलव्विस नजर आ रही है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप, वस्ती एशिया और कनाडा के नौजवानों में सिगरेट और शराब नोशी में इजाफा हो रहा है और मनशियात इस्तेमाल करने वाली लड़कियों की तादाद लड़कों से तजावुज कर रही है। 20% नौउम्र बच्चों को सिगरेट नोशी और 15 साल उम्र के निस्फ बच्चों को शराब नोशी का तजुर्बा हो चुका है। WHO के जायजे में 15 साल उम्र के 57% बच्चों ने बताया कि वो शराब नोशी की कोशिश कर चुके हैं और 37% का कहना था कि उन्होंने गुज़िश्ता महीने शराब नोशी की है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगरचे अमूमन लड़कियों के मुकाबले में शराब और सिगरेट नोशी करने वाले लड़कों की तादाद ज्यादा होती है, लेकिन अब यह रुझान तब्दील हो रहा है। 15 साल की उम्र से सिगरेट, शराब नोशी और ई सिगरेट इस्तेमाल करने वाली लड़कियों की तादाद लड़कों के बराबर हो गई है या उनसे तजावुज कर चुकी है। माहिरीन का कहना है कि नौजवानों में जराइम और मनशियात की बढ़ती हुई शरह के असबाब में नफ्सियाती मसाइल, तालीमी दबाव और तरबियत का फुकदान है। वो घराने जिनमें वालिदैन बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देते हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, औलाद के मसाइल में दिलचस्पी लेते हैं, वो नौजवान जराइम और मनशियात से दूर रहते हैं। औलाद की तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी भी है और आखिरत में कामयाबी का जरिया भी है। औलाद की तरबियत माशरती, अखलाकी और दीनी फरीजा है।